कि हम किस तरह से बहुत इफेक्टिव और इजीली हम वीडियो बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इन फ्यूचर आप इनको यूज कर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू उमा मैम। अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हमारी जो स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर निशा अरोड़ा मैम। Nisha Arora ma'am, she has more than a decade experience that includes academic experience at Amity University and GD Goenka University, Gurugram. She contributes research communities such as ResearchGate, Stake Exchange and Quora, blog and YouTube. She has hands-on experience in machine language, data science, statistical analysis, IR programming, Python and SPSS. And she is one of the best corporate trainer and content creator. So now I just request to the Dr. Nisha Arora ma'am that I'm going to just hand it over to you. Nisha Arora ma'am. Yeah. Good morning. Can you hear me? Ma'am, please unmute yourself. Yeah, I have unmuted. Can you hear me now? Yeah, definitely, ma'am. I think it's better not to use the earphone. Yeah. So I'll share my screen. Before that, I would like to talk to you that my topic is online teaching tools and assessment tools. And I would also like to give you some tips like how you can make it more effective. So in between I will see, and like it's an ongoing FDP from 2 days, participants are learning new things from different resource person. So Renu ma'am, you can tell me if something you find that they have already learned, it's repetitive, I will skip that part. And if you want me to focus on a particular thing, then I will elaborate it more, whatever I'm planning to cover. So it will help them to gain more. Let me share my screen. Yep. So I hope you can see my PPT, everyone. It's visible? Yeah, ma'am, it's visible. Fine. Wait a minute. So anytime if you feel you can't see my PPT or my voice is breaking or something, please interrupt me in between and tell me what can we do. So before I talk about anything, let me just tell you that these days we all are teaching online, but even when we are teaching offline, then too as a teacher we need to always think how we can improve, how we can learn more, and how we can make our teaching effective. Teaching is not only like we are delivering something. Teaching is always what we are delivering. Participants should be able to gain that. So it is a two-way process. They should be able to gain, they should be able to interact, and moreover, they should start developing passion in whatever subject you are teaching. For example, I was a maths teacher and then I have taught a wide variety of subjects, but all were technical, statistics, operations, supply chain management, everything. So initially, I realized that students hate maths, they don't like maths, they don't like working hard. So as a teacher, it's our job to create a passion in our students, to make our subject interesting for them, even if we are teaching in the classroom. Here we will be particularly focusing on how we can make our online teaching effective. We will be discussing some of the tools, some of the tips and techniques. So let me go to the topic straight away. So whenever we teach, first of all, we need to facilitate thinking in a student's mind. We need to engage their mind also. This is one thing what I have seen that many teachers are doing it wrong when they are coming to the online mode. They believe that we don't have a student, we don't have class to look at, we can't interact with the people, and like they think that we can't talk to them. So what they do is in a 60 minutes of class, they speak for 55 minutes or maybe 50 minutes continuously. And it's a kind of disconnect in the student because they feel that they are not getting connected to the content at times. So you need to engage them, you need to involve them. These days, it's very important that you try to
Wait a moment. I think my video is not visible. Can you all see that also? Yeah, ma'am, it's visible. Okay, okay. Actually, I'm using second monitor. It's not visible there. Fine. So it's really important that you engage them. And these days you might have heard about the concept of flipped classroom. So it's not a classroom when only the teacher is teaching. It's a two-way interaction. So even when you are teaching online, you need to find ways how you can connect with your students, how you can win their trust, how you can involve them in your teaching. And then you need to definitely listen to their queries. You need to answer those queries. You need to support where they struggle. Maybe it is subject related struggle, maybe it is tool related struggle. And every day you need to learn and you need to adopt. And yeah, sorry for that. I realized that I need to speak in Hindi. So I'll try to come back to Hindi. So जब भी हम पढ़ाते हैं तो नॉलेज से ज्यादा मुझे लगता है कई बार कम्युनिकेशन स्किल का भी रोल होता है। जब आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, आपकी नॉलेज नो डाउट इट्स इम्पोर्टेंट, बट इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप कितना इफेक्टिवली अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपकी बात को गेन ज्यादा कर पाएंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं तब भी आपकी बात को वो जितना आपसे कनेक्ट होंगे उतना इफेक्टिवली उसको गेन कर पाएंगे। और टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स में ये जरूरी नहीं है कि आप उनको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएं या ये बताएं कि आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम में आएगा, इसके लिए आपको कैसे पासिंग मार्क्स या अच्छे मार्क्स गेन करने। आपको उनको ये सिखाना होता है कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, मैथमेटिक्स कैसे सीखा जाता है, उससे डरना नहीं है, उसमें प्रो कैसे बनना है, उसमें एक्सपर्ट कैसे बनना है। तो ये बहुत जरूरी है। अभी हम कुछ चीजें देखेंगे जिससे हम अपनी इन चीजों को भी इम्प्रूव कर पाए। यूजुअली जब हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं, क्लासरूम टीचिंग में यूजुअली हमें इस तरह से करना चाहिए कि अपना जो भी टाइम ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल हम 1 घंटे का लेक्चर होता है उसको ब्रेक करें छोटे छोटे ड्यूरेशन में। हमें जाते ही क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले कुछ 3-4 मिनट इंटरेक्शन, हाय हेलो स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, पिछले दिन क्या पढ़ा था उसका रिविजन, कोई छोटी सी क्विज पूछ ली जिससे हम उनको क्लास में इन्वॉल्व कर पाए। अगर कोई और अपना पिछला कोई असाइनमेंट कर रहा है, कोई क्लास से बाहर है, ऑब्वियसली वी नीड टू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑल्सो। हमें उनको टाइम पे आने के लिए, नोट टेकिंग के लिए, हर रोज कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हमें हर दिन याद दिलाना होता है कि आपको नोट टेकिंग करना है, आपको लिखना है, आई विल चेक। जो भी आपका तरीका है स्टूडेंट का हैंडल करने का, इनिशियल 2-3 मिनट्स कनेक्ट विद दोस्त, आप रिविजन करो पिछले दिन का, अपना क्लास का आज का एजेंडा 1 मिनट, 2 मिनट, 50 सेकेंड, 30 सेकेंड, जो भी आपको टाइम लगता है, डिस्कस करो कि आज के क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नो डाउट आप पढ़ाओ। क्वेरी हैंडलिंग और डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट में, इसके बारे में हम और बात करेंगे डिटेल में। और फाइनली जब आप वाइंड अप करते हैं, आपको बताना होता है क्विक समरी कि आज हमने ये पढ़ा है। इस समय आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनको कोई छोटा सा होमवर्क दे सकते हैं कि कल जब आप मेरी क्लास में आप ये पढ़ के आइएगा या आज वाला रिविजन करिएगा, कल आपसे ये पूछा जाएगा, जस्ट टू मेक देम कनेक्टेड, तो वो कल भी आपकी क्लास में आने के लिए उतना ही एक्साइटेड हो। नेक्स्ट हम ये चैलेंजेस जो होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं सब्जेक्टिव है, इट्स नॉट दैट कि जो मैंने टाइमलाइन लिखी है वही फॉलो की जाती है। आप अपने सब्जेक्ट, अपनी ऑडियंस, अपनी टीचिंग स्टाइल के हिसाब से इस तरह से करें। बट कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि एक बार अपने स्टूडेंट से कनेक्ट करें। उनको पता होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स जो डेली नहीं पढ़ते हैं, वी ऑल नो कि क्लास में से स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, तब भी वो आपकी क्लास में कनेक्टेड फील करें। उनको ऐसा नहीं लगे कि मैम कुछ पढ़ाती है, हम तो लास्ट में पढ़ेंगे, वो कनेक्टेड फील करें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब हमारे पास क्लासरूम ही नहीं है, ऑनलाइन हमें पढ़ाना है, तो हमारे पास और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आपको ये सारी चीजें करने के अलावा we can see we have 3 more points I have added here. और भी हो सकते हैं। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है जब भी हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन शेयर को चेक करें। अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे। मैनेजिंग ऑनलाइन क्लासरूम बिहेवियर, वी विल टॉक अबाउट दिस एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट चैट हैंडलिंग। तो ये 3 पॉइंट पे हम फिर से डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस हो जाते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, बट फाइनली जस्ट 1 पॉइंट यू नीड टू टेक केयर।
that you need to accept the change. आपको ये स्वीकार करना है कि अभी हम क्लासरूम टीचिंग में नहीं है, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमें इसके साथ अडेप्ट करना है, हमें ये चेंजेस स्वीकार करने हैं और हमारी टीचिंग को एंजॉय करना है। बिकॉज अगर हम ये मानते रहेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग डिफिकल्ट है, हमारा काम बढ़ गया है, हमें नए टूल्स सीखने पड़ते हैं या कुछ परचेस करना पड़ता है, ये सारी चीजें मटेरियल शेयरिंग के लिए बनाने के लिए हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, जब तक हम ये माइंडसेट रखेंगे हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है उन फैकल्टीज के लिए जो अब तक कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे या अब तक ज्यादा आईसीटी टूल्स का यूज नहीं करते थे। सबसे पहले आप इस चेंज को स्वीकार करें और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़े कि हमें और नया सीखने को मिल रहा है। तो इट्स अ लर्निंग फॉर लाइफ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियो वीडियो और स्क्रीन शेयर की। एक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर बार लेक्चर से पहले आप अपना ऑडियो चेक करें। कई बार ऐसा होता है कि हमने क्लास से जस्ट पहले चेक किया, हमारा ऑडियो काम कर रहा था, जब पार्टिसिपेंट आए लेक्चर स्टार्ट हुआ, समहाउ कोई टेक्निकल ग्लिच है या कोई वायर आपका केबल हिल गया है, व्हाटएवर इज द रीजन, लेकिन आपकी आवाज पार्टिसिपेंट तक नहीं जा रही है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट आप पहले कंफर्म कराएं, अपने स्टार्टिंग के 1 मिनट 30 सेकेंड लगाएं, सभी से पूछें कि वो आपको सुन सकते हैं। सेकेंड, एक बहुत जरूरी होता है जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम जो भी प्लेटफॉर्म यूज करें, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स हैव दिस ऑप्शन जहां पे हम सारे पार्टिसिपेंट को म्यूट कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स अस, क्योंकि एज अ लेक्चरर जब आप पढ़ा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप चाहते हैं कि बीच में किसी और की आवाज से डिस्टर्ब नहीं है। प्लस क्योंकि ये क्लासरूम नहीं है तो पार्टिसिपेंट इंटेंशनली डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बट उनकी बैकग्राउंड नॉइज भी आपको डिस्टर्ब तो take care. Platform don't have this facility like Google Meet, we can't do this, but we have Chrome extension where we can use these kind of features. Definitely we need to think, अगर कभी हम कोडिंग पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, तो कई बार आपको एरर हैंडलिंग के लिए स्विच प्रेजेंटर ऑप्शन को भी यूज करना होता है। तो आप ये सारी चीजें पहले सीख ले। जैसे मैं अपना आर्या पाइथन का जब सेशन लेती हूँ, स्टूडेंट साथ में अपने कंप्यूटर पे आर्या पाइथन कोड रन करते हैं, कुछ स्टूडेंट साथ में नहीं रन कर रहे हैं बट वो मुझे सुन रहे हैं। अगर वो साथ में रन कर रहे हैं, उनको कोई एरर आ जाती है, वो बोलते हैं मैम ये तो मेरा नहीं आ रहा है, तो मैं उनकी स्क्रीन देखना चाहती हूँ जिससे मुझे पता लगे कि उन्होंने कहाँ गलती की है। तो ये एक ऑप्शन भी होता है, कई बार आप टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए इनको यूज कर सकते हैं। वीडियो के बारे में कहूंगी कि आपको आवश्यक रूप से सभी को कहना चाहिए कि वो अपना वीडियो ऑफ रखें, या अगर आपको प्लेटफॉर्म ये सुविधा देता है तो एज अ होस्ट, एज अ ऑर्गेनाइजर आप सभी का वीडियो ऑफ करें, जिससे आपको डिस्ट्रप्शन कम हो और बैंडविड्थ भी बच जाए। लेकिन जब आप इंटरैक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं, कोई 1-on-1 पार्टिसिपेंट आपसे कुछ प्रेजेंट कर रहा है, कई बार हम जैसे MBA में होता है प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशन होती है, या हम कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं हम सभी लोगों को देखें और बात करें, तो ये बहुत जरूरी है कि वहां पे आप उनको वीडियो ऑन करने के लिए बोलें। जनरली आप देख रहे होंगे इन दिनों सभी स्टूडेंट्स की, किड्स की भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, इवन नर्सरी क्लास, प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, तो उनको कहा जाता है अपना वीडियो ऑन रखो, ताकि हम देख सके कि 3 साल 2.5 साल का टॉडलर, 4 साल का टॉडलर अगर लैपटॉप पे ऑनलाइन क्लास कर रहा है तो वो एक्चुअली कुछ सुन रहा है या वो गेम खेलने लगा है। तो इट्स इम्पोर्टेंट एट टाइम्स कि हम उनको बोले आप अपना वीडियो ऑन रखो, बट यू नीड टू चूज व्हाट यू नीड टू थिंक व्हाटएवर इज सूटेबल फॉर यू। स्क्रीन शेयर जब हम देखते हैं, हर एक टूल में कुछ ऑप्शंस होते हैं स्क्रीन शेयर के लिए, उसमें डेस्कटॉप शेयर का या कंप्लीट शेयर का ऑप्शन होता है। इट मींस अब आप अपने लैपटॉप पे जो भी स्क्रीन खोलेंगे वो आपको विजिबल होगी। अभी मैंने आपसे पीपीटी शेयर की हुई है, अभी हम कुछ मिनट में और भी स्क्रीन आपसे शेयर करेंगे, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, व्हाटएवर आई ओपन ऑन माय सिस्टम यू विल बी एबल टू सी। एक ऑप्शन होता है जिसमें आप कस्टम या विंडो शेयर करते हैं। कई बार हम नहीं चाहते कि हमारे लैपटॉप पे जो भी हमने खोल रखा है सभी कुछ सारे पार्टिसिपेंट्स को विजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल अपने नोट्स के लिए मैंने कुछ वर्ड फाइल खोली हुई है, या कोई अपना ब्राउजर में कोई टैब खोली हुई है, या सपोज मेरा मेल ही खुला हुआ है एंड आई डोंट वांट एवरीवन टू सी माय मेल। In that case, we can select the window जो हमें स्क्रीन शेयर करनी है। लेकिन इसमें हर एक प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर रहे हैं उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ऑटोमेटिकली शेयर न्यू विंडो का ऑप्शन कुछ में होता है, कुछ में ये ऑप्शन नहीं होता है।
तो आपको ये देखना होता है कि आप एवरी टाइम जब नई विंडो कुछ खोल रहे हैं तो उसको शेयर करें। पॉज स्क्रीन शेयर भी एक ऑप्शन होता है। कई बार क्या होता है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज फाइंड आउट करनी, स्पेशली जब हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं, अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है स्किप हो गई माइंड से और स्टूडेंट को नहीं दिखाना चाहते लेकिन आप चेक करना चाहते हैं वो कहाँ है, तो आप उस केस में अपनी स्क्रीन को पॉज करें और पॉज करने के बाद जब आप उसमें कुछ ढूंढ के फिर से रिज्यूम करेंगे तो आप वहां से उनको कंटिन्यू दिखा सकते हैं। जब आपकी स्क्रीन पॉज होगी तो पार्टिसिपेंट आपके वो स्क्रीन वहीं पे देख पाएंगे। लेट मी शो यू विद दिस एग्जांपल। जैसे एक बार मैं अपनी स्क्रीन पॉज करती हूँ, जस्ट अ मिनट। सो my screen is paused and I think now you cannot see my screen. Again, let me take you to the screen share. Resume share. So you can see my screen again. तो इस बीच में जब मैंने स्क्रीन पॉज की थी, आई थिंक मैंने बाय मिस्टेक स्टॉप भी कर दिया था, बट जब हम पॉज करते हैं फिर से रिज्यूम करते हैं, उस बीच में आप मेरी करंट स्क्रीन को देखते हैं, उस बीच में मैं जो भी काम कर रही हूँ वो आपको नहीं दिखाई देता है। तो एट टाइम्स टीचर्स को ये भी जरूरी होता है यूज करना। नेक्स्ट है मैनेजिंग ऑनलाइन behavior. So how you can manage online participant behavior? As a teacher हम हमेशा चाहते हैं क्लास में कुछ डिसिप्लिन होना, तो टीचर इज ऑलवेज द किंग ऑफ द क्लास और क्वीन ऑफ द क्लास, जो रूल डिसाइड करते हैं। जैसे हम अपनी क्लास में पंक्चुअलिटी का, टाइम पे आना है, असाइनमेंट कब तक देना है, शांति से बैठना है, डिस्टर्ब नहीं करना, बहुत सारे रूल हम बताते हैं जब हम क्लासरूम में होते हैं। सिमिलरली आप अपनी ऑनलाइन क्लास के कुछ रूल सेट करें और वो अपने पार्टिसिपेंट को कन्वे करें। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उनसे डिस्कशन करने के लिए, वेदर इट इज गूगल क्लासरूम या आप जीमेल ग्रुप करते हैं या आपका व्हाट्सएप ग्रुप चलता है या आपका आई थिंक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप डेली अपने पार्टिसिपेंट से, अपनी क्लास से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहां उनको अपने रूल बताएं। और आई बिलीव जैसे आप एक कोर्स पढ़ा रहे हैं फॉर द एंटायर सेमेस्टर, तो सेमेस्टर के स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप उनको 2-4 बार ये रूल बताते रहें। फॉर एग्जांपल आप पूरा कोर्स पढ़ाने वाले हैं तो फॉलो द कोर्स फाइल और द टाइम टेबल। यूजुअली हम कोर्स फाइल बनाते हैं जिसमें डॉट टू डॉट शेड्यूल लिखा होता है, हम क्या कराने वाले हैं, पूरे किस डेट पर कितने घंटों में क्या टॉपिक होने वाला है। टाइम टेबल होता है हमारे पास जो हमने बनाया होता है। तो ये सारी चीजें हमको इनिशियली बता सकते हैं कि आपको क्लास के लिए ये फॉलो करते रहना है और डेफिनेटली क्वाइट प्लेस से आपको अटेंड करना है। ऐसे नहीं कि आपने वीडियो भी ऑन रखा हुआ है और आप किचन में जाके कुछ करते हुए आप वीडियो के सामने बैठकर क्लास सुन रहे हैं, या आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और वीडियो ऑन करके क्लास सुन रहे हैं। सो मेक योर ओन रूल्स एंड टेल दिस टू योर स्टूडेंट टू मेक योर क्लास मोर डिसिप्लिन। चैट हैंडलिंग की जो बात होती है, जैसे हम इसको ड्यूरिंग सेशन, आफ्टर सेशन दोनों तरह से कर सकते हैं। प्रेफर आप क्या करते हैं आप पर डिपेंड करता है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, या आप चाहे पोइट्री ही पढ़ा रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट आपसे बीच में ही इंटरेक्ट करें, उनको क्वेरी आ रही है पूछे, वो कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं करें, तो आप उनको अलाउ करें कि वो चैट इन सेशन कर सकते हैं। आफ्टर सेशन कभी कभी आप चाहते हैं कि मैं फ्लो में कुछ पढ़ा रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट डिस्टर्ब ना करें, टाइम कम है, या जनरली जब हम वेबिनार लेते हैं तो हमें ये वेबिनार बेसिकली एक ओवरव्यू टाइप का सेशन होता है जिसमें हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, ओवरव्यू देते हैं किसी भी चीज पर। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है कि आप उनको बोले कि आफ्टर सेशन ही वे चैट करें, लेकिन सिर्फ कहना सफिशिएंट नहीं होता स्टूडेंट के लिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं उसमें हम चैट डिसेबल कर सकते हैं पार्टिसिपेंट के लिए। अगर आप YouTube लाइव सेशन भी कर रहे हैं, आई थिंक FB लाइव में भी होगा ये ऑप्शन, कि हम उसमें चैट तब तक डिसेबल कर सकते हैं जब तक हम नहीं चाहते। तो हम चैट को तभी अलाउ करें जब हम उनको आंसर करने के लिए रेडी हो, दैट कैन बी डन। ऑल्सो स्टूडेंट मॉडरेटर इज अ थिंग। जैसे आप क्लास में जब लेक्चर लेते हैं तो आप यूजुअली अकेले होते हैं, जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज में होता है कि प्रोफेसर्स को असिस्टेंट्स मिले होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं टेक्नोलॉजिकल चीजों में भी, असाइनमेंट प्रिपेयर करने में, सब कुछ। बट इंडिया में यूजुअली ये कंसेप्ट नहीं है। तो आप एज ए लेक्चरर पढ़ा भी रहे हैं, क्वेरी भी हैंडल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल को ले चाहता है उसको भी
देख रहे हैं, सभी कुछ आप कर रहे हैं। उस बीच में अगर चैट पे किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्टूडेंट कुछ लिख रहा है, आपकी क्लास से 1 या 2 ऑनेस्ट एंड एक्टिव बंदा जो प्रोएक्टिव हो, जो समझता हो इन चीजों को, उनको आप स्टूडेंट मॉडरेटर बना सकते हैं। तो अगर किसी को सेशन ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को वॉइस नहीं आ रही है, किसी को स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ ऐसी चीज है जो अगर नहीं पूछ रहा है तो वो आज की क्लास मिस कर रहा है, और अगर वो पूछ रहा है और आप सेशन पढ़ा रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप आंसर नहीं कर पा रहे, तो वो स्टूडेंट मॉडरेटर आपके बिहाफ पे उनको सजेस्ट करे और आंसर करे। जैसे मैं अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेती हूँ, जो मैं खुद अपनी लॉन्च करती हूँ, उसके लिए मेरा ग्रुप है जहां मैं कम्युनिकेट करती हूँ। बट उसमें क्या होता है कि फर्स्ट डे जो मेरा सेशन का होता है, नए लोग होते हैं, उनको अगर नहीं अपना आइडिया है कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है, तो कुछ लोग अपने व्हाट्सएप या गूगल ग्रुप पे मुझे पूछते हैं कि मैम आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन, और क्या ऑप्शन को मुझे क्लिक करना है। ऑल्दो मैं सारा इंस्ट्रक्शन विद स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, बट स्टिल स्टूडेंट है, दे विल हैव प्रॉब्लम्स एवरी टाइम। तो एक बंदा मॉडरेटर हो जो मैं मेरे बिहाफ पे उनको आंसर कर दे कि आप यहाँ से ज्वाइन कर लो, इस ऑप्शन को क्लिक कर लो एंड ऑल दैट। सो दैट कैन बी डन टू मेक योर टास्क इजी, मेक योर लाइफ इजी, और वो आपका क्लास भी बिना डिस्ट्रप्शन के चल सकती है। तो आपको अपना एक तरीका फाइंड आउट करना होता है कि आप किस तरह से इसको करें। अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स के जो पर्टिकुलरली ऑनलाइन टीचिंग में जाके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हमने अभी बात करनी है ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म की, तो मुझे लगता है यहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स अलग अलग कॉलेज इंस्टीट्यूट से हैं, तो वो अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे। ऑल्दो इनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, आई बिलीव ये आपने कहीं ना कहीं कवर किया होगा या अब तक आप यूज टू हो गए होंगे इस सब की। असाइनमेंट एग्जाम की हम आज बात करेंगे, और इसके बाद हम देखते हैं डिस्कशन एंड इंटरेक्शन। तो इसकी हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। क्वेरी हैंडलिंग देखेंगे, मटेरियल क्वेरी हैंडलिंग में बेसिकली आई थिंक आई हैव opened up a different PPT, my latest PPT, in which I have done some changes. I by mistake opened something else, but anyways, discussion and interaction में जैसे हमने अभी बात की कि हम किस तरह से पार्टिसिपेंट से डिस्कशन इंटरेक्शन कर सकते हैं चैट के दौरान। इसके अतिरिक्त एक और अधिक चीज होती है, जैसे हम जूम यूज करते हैं, मैं रेयरली जूम यूज करती हूँ, तो आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट द ऑप्शंस, लेकिन जूम में आई एम यूजिंग द फ्री वर्जन, बट देयर आर पेड वर्जन, देयर आर इंस्टीट्यूट वर्जन वेयर यू कैन पे। तो आई थिंक पेड वर्जन में ये फीचर है, दिस इज अ रिसेंट फीचर ऑफ ब्रेकआउट रूम्स, इट इज अ नाइस फीचर। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम लेक्चर और ट्यूटोरियल चलाते हैं क्लासरूम में, यहाँ पे आप डिस्कशन या ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, या हम जैसे आजकल प्रोजेक्ट करते हैं। जब मैं एकेडमिक्स में थी, व्हेन आई वाज टीचिंग इन कॉलेज, तो हमारा एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होता था, जब हम 10-10 की टीम बनाते थे, पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कोई फैशन डिजाइनिंग का स्टूडेंट है, कोई म्यूजिक का स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई MBA का है, और हम उनको साथ करके एक ग्रुप बना के एक प्रोजेक्ट देते थे, फिर उनसे डिस्कशन एंड ऑल दैट वो होता था। तो अगर आप इस तरह का कोई डिस्कशन चाहते हैं, तो आप अपनी क्लास को, जो भी आप पर्टिकुलर क्लास लेते हैं, उसको ब्रेकआउट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। आपकी 60 की क्लास है, तो आप इसके 2, 3 या 4 ग्रुप बना दें, मैक्सिमम आप 60 ग्रुप बना सकते हैं, जूम में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उस ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट होंगे, वो उसी ग्रुप के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मटेरियल शेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो ये एक ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा फीचर है। और भी प्लेटफॉर्म में इस तरह के फीचर्स होंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज नहीं जा रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्शन को, वो इस चीज को भी मिस कर रहे हैं कि वो टीचर को 1-on-1 देख ही नहीं पा रहे हैं, टीचर से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते। और सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए होता है जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो शाई होते हैं। वो स्टूडेंट, जब तक आप उनको पुश नहीं करोगे, वो आपसे बात ही नहीं करते, लेकिन आपको उनको पुश करना होता है, आपको उनको ओपन अप करना होता है कि वो कंफर्टेबल फील करें। तो आपको तरीके ढूंढने होते हैं कि आप उनको कैसे ओपन करो, एज अ फ्रेंड वो आपसे बात कर सके, एज अ फ्रेंड वो अपने फ्रेंड से मिक्सअप हो सके और अपना ग्रुप फाइंड आउट कर सके। तो ये इस तरह की चीजें भी आपको यूज करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप जूम यूज नहीं कर रहे हैं या आपके प्लेटफॉर्म में इस तरह का टूल नहीं है, व्हाट आई प्रेफर इज वी क्रिएट ग्रुप्स, वी ऑल हैव द फैसिलिटी, आई होप यू ऑल आर यूजिंग ग्रुप्स। गूगल ग्रुप्स जो हमारा जीमेल पे होता है, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप इसको प्राइवेट ग्रुप बनाओ, पब्लिक ग्रुप बनाओ, क्या क्या आप राइट्स दो अपने ग्रुप मेंबर्स को, क्या नहीं दो, व्हाट्सएप ग्रुप एंड डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप, एंड देयर आर मेनी। तो आप ऐसा ग्रुप बनाओ जहां पे लोग मटेरियल शेयर कर सके, अपने डाउट्स पूछ सके,
करेंगे, और आप डेफिनेटली एज एन ऑर्गेनाइजर, एज अ होस्ट, या तो उस ग्रुप के कुछ रूल डिसाइड कर लो कि आपको ये ऑफेंसिव कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसी चीज नहीं शेयर करो जो कॉपीराइट वायलेशन हो एंड ऑल दैट। आप अगर ऑर्गेनाइजर है तो आप अपने रूल्स बनाएं, अदरवाइज आप स्टूडेंट को आइडिया दे सकते हैं। इफ दे वांट टू डिस्कस, वो अपने सेपरेट ग्रुप बना के वो अपनी लैंग्वेज में भी डिस्कस करें इफ दे फील हेजिटेंट इन फ्रंट ऑफ टीचर। क्वेरी हैंडलिंग की हमने बात की, तो जैसे हम ट्यूटोरियल ट्यूट सेशन जो टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए कॉलेज में लेते हैं, उसी तरह से जब आप लेक्चर पढ़ा रहे हैं आप ये प्लान करें कि कुछ सेशन पर्टिकुलरली क्वेरी हैंडलिंग के लिए ही होंगे। स्पेशली आप जब टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो कई बार ऐसी चीजें होती है जो स्टूडेंट बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तब उनको डाउट आएंगे, क्लास के साथ नहीं आएंगे। तो आपको कुछ टाइम फाइंड आउट करना होता है, या फिर आप उनको अपना ओपन ने डिसाइड किया हुआ था ओपन ऑफिस आवर्स, क्योंकि पूरा दिन हम बिजी होते हैं, क्लासेस होती है और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी फैकल्टीज पे होती है, तो एक पर्टिकुलर हमारा टाइम होता था कि वीक में ये दिन ये घंटा हमारा ओपन ऑफिस आवर है। दैट टाइम द फैकल्टी नीड्स टू बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। तब मुझे ऑफिस में बैठना ही बैठना है, मैं अपने कैबिन में ही रहूंगी और वहां पे कोई भी स्टूडेंट अपना डाउट लेकर आ सकता है, असाइनमेंट चेक करना है, कई बार कुछ भी इश्यूज है वो हमसे आकर डिस्कस कर सकते हैं, एंड मेंटर मेंटी मीटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आप ऑनलाइन भी अपना कुछ ओपन ऑफिस आवर अपने हिसाब से बना सकते हैं कि किस समय स्टूडेंट आपसे इंटरेक्ट करें और डाउट पूछें। मटेरियल शेयरिंग डेफिनेटली आपको ये बहुत जरूरत होती है, तो आई थिंक आप सभी यूज करते होंगे इस तरह की कुछ चीजें। तो आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन हाउ टू यूज, बट गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, दीज आर द टू पॉपुलर वन। लेकिन आपको पता होगा कि कई सारे ऑप्शन आज के टाइम में होते हैं मटेरियल शेयरिंग के लिए, बट आई वुड सजेस्ट आप अपने सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर फोल्डर सिर्फ एक ही जगह बनाएं। इसको रैंडम नहीं करें कि कुछ मटेरियल आप व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, कुछ मटेरियल आप गूगल ड्राइव या मेल पे शेयर कर रहे हैं, कुछ ड्रॉपबॉक्स पे। वो आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट होगा। तो आप अपना एक फोल्डर बना के उसमें मटेरियल शेयर कर रहे हैं। समवन हैज रेज्ड हैंड, यू कैन राइट योर क्वेरी इन द चैट विंडो। आई एम रीडिंग द चैट साइमल्टेनियसली। जूम में किसी ने बैकग्राउंड पोस्टर की बात की, अभी हम उसको देख लेंगे। या वीडियो में ऑप्शन होता है आपका चूज वर्चुअल बैकग्राउंड, बट ये जो चूज वर्चुअल बैकग्राउंड है ये उन्हीं के सिस्टम पे काम करता है जिनका कुछ एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी आई हैव चोजन दिस बैकग्राउंड, सो इट्स वर्किंग फॉर मी। और अदर शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, as of now I remember these two, but like SlideShare is for particularly PPT, and I'll look into this, I'll tell you। और क्या क्या प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मटेरियल शेयर कर सकते हैं। क्विकली जो मुझे याद आ रहा है वो गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स है, बिकॉज आई यूज दीज टू फ्रीक्वेंटली। अटेंडेंस आप किस तरह से लेते हैं डिपेंड करता है डेफिनेटली आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। आई बिलीव कुछ प्लेटफॉर्म में इनबिल्ट ये होता है, जैसे आप गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं तो गूगल क्लासरूम में इंस्टीट्यूट वाला जो आपके पास है उसमें आपके पास अटेंडेंस का ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अ फैकल्टी एंड आई डोंट नीड अटेंडेंस इन एवरीथिंग इन माय कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ये सब कुछ नहीं चाहिए, आई नीड टू जस्ट टीच एंड क्वेरी हैंडलिंग। तो अटेंडेंस के लिए मैंने कुछ एडॉन्स डाउनलोड नहीं किए हुए हैं, लेकिन आप जो भी अपना टूल यूज कर रहे हैं फाइंड आउट करिए, उनके एक्सटेंशंस होते हैं जिससे आप अटेंडेंस ले सकते हैं। इन सेशन क्विज एंड पोल, तो यूजुअली क्या होता है अलग अलग तरीके होते हैं। आप वर्बल क्विज लेना चाहते हैं, आप किस तरह के मोड में क्विज लेना चाहते हैं, बट एक क्विक पोल हमें जब लेना है, कुछ तो हमें प्लेटफॉर्म ही ये ऑप्शन देते हैं कि हम क्विक पोल लें। जैसे FCC जो मैं यूज करती हूँ, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल, ये एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बात करती हूँ 2 मॉनिटर के लिए पेश अपनी बात फिनिश करके। तो पोल की जो बात है, जैसे मैं FCC प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ क्योंकि यूजुअली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेती हूँ, उसके लिए उनका अपना कोई प्लेटफॉर्म जो वो देते हैं उसी पे मुझे लेना होता है। आई डोंट नीड टू पे। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग लॉन्च करके ले रही हूँ तो आई प्रेफर फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल। आई विल टॉक अबाउट दिस। उसमें एक ऑप्शन होता है पोल का। पोल का एक तो क्विक ऑप्शन होता है, आई थिंक जूम में भी होगा, आई डोंट रिमेम्बर। कुछ उसमें होता है कि आप इस तरह से पूछ सकते हो, जब आप पढ़ा रहे हो आप एक क्विक कंफर्मेशन चाहते हो कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा है,
आपको जो हम बता रहे हैं, आर यू गेटिंग इट, या आपको कुछ डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसमें इस तरह के 3 ऑप्शन होते हैं क्विक कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ आर यू गेटिंग इट, समझ आ रहा है आपको, तो कुछ ही एक्टिव स्टूडेंट चैट करते हैं हाँ आ रहा है। जो स्टूडेंट होते हैं वो सुन रहे होते हैं, उनको समझ आ रहा है या उनको डाउट है। कई स्टूडेंट शाई अवे करते हैं, वो लिखते नहीं है चैट पर भी, या कई लेजी भी होते हैं, टाइप कौन करे इस तरह से। तो हमारे पास एक पोल का ऑप्शन भी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स में होता है। उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि कितने परसेंट पार्टिसिपेंट ने मुझे रिप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 की क्लास है, मैंने पोल किया तो मुझे क्विकली आफ्टर फ्यू सेकंड दिख जाता है कि 200 में से 170 ने रिप्लाई किया है, इतने परसेंट लोगों को समझ आया है, इतनों को नहीं आया या इनको कोई डाउट है। तो मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि मुझे इस टॉपिक को और इन डेप्थ ले जाना है, या अब इसको थोड़ा सा लाइट करना है, या आप पहले उनके डाउट हैंडल्स करने। तो इस तरह की चीजें कुछ तो हमें दी जाती। कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि हम पीपीटी यूज कर रहे हैं तो पीपीटी में हम क्विज डाल सकते हैं, अपनी अलग अलग तरीके होते हैं। और डेफिनेटली गूगल फॉर्म और कुछ और तरीके हैं हमारे पास क्विज लेने के लिए। एक कहूट एक फन वे है, आपको अगर टाइम मिलेगा तो दिखाएंगे। ये जब हम असेसमेंट की बात करेंगे थोड़ा सा इसको टच करेंगे क्विज को फिर से। चैट एथिक्स की हमने बात की है कि हम चैट को इन सेशन लेना चाहते हैं, बाद में लेना चाहते हैं और मॉडरेटर बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, हमें एथिक्स और रूल सेट करने ही होते हैं कि आप कोई रफ लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ पे स्टूडेंट है, टीचर से सभी है। स्टूडेंट जैसे आपस में कुछ लैंग्वेज बात करते हैं तो उनको अलाउ नहीं कीजिए, एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू पनिश देम। अगर कोई स्टूडेंट फिर भी कुछ रूड लैंग्वेज या कुछ इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स लिख रहा है जो आपको नहीं लगता कि उन्हें लिखना चाहिए, तो उस दिन के लिए उन्हें क्लास से आप बाहर कीजिए, उन्हें वार्निंग दीजिए, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए, नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज अलाउ नहीं कीजिए। अदरवाइज ये आपके लिए पेन बन जाएगा कुछ क्लासेस के बाद कि आप कुछ पढ़ा रहे हैं और वहां कुछ और डिस्कशन हो रहा है। तो टेक केयर ऑफ दैट थिंग। नोट टेकिंग इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ कि चाहे मैं थ्योरी पढ़ाऊं या प्रैक्टिकल, चाहे मैं एक्सेल पढ़ाऊं या आर प्रोग्रामिंग या स्टैट्स या मैथ्स, कुछ भी, ये बहुत जरूरी है कि आप साथ में नोट्स लिखें। और ये मेरी एक हैबिट में है। मैं तो इवन एक ब्लॉग भी पढ़ती हूँ, उसमें नोट टेकिंग की मेरी हैबिट है कि मैंने कहीं भी कुछ भी पढ़ा सुना, आई एम एविड रीडर, बहुत पढ़ती हूँ मैं, तो उस पर नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके कुछ टूल्स मैं आपको बता दूंगी कि आप किस तरह से नोट टेकिंग कर सकते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। राइटिंग ऑन स्क्रीन, मैम ने कुछ बात की थी, अभी आपको दिखाया था एक डिवाइस, वाकॉम पेन टैबलेट। आई ऑल्सो यूज दैट एंड आई एम लविंग इट। बट आई विल टेल यू कि अगर पेन टैबलेट है भी, जैसे मैं आप पीपीटी पे लिख रही हूँ, आप बिना पेन टैबलेट के भी थोड़ा बहुत तो लिख सकते हैं। उतना राइटिंग अच्छी नहीं आती, राइटिंग तो मेरी अभी भी पुअर है, बट आप स्क्रीन पर लिख सकते हैं। पेन टैबलेट परचेज करने से पहले मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने आप को समझाना चाहती हूँ, तो हाउ विल आई राइट। सेशन रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस क्योंकि ये आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं कवर हो चुका है। अब राइटिंग ऑन स्क्रीन के लिए एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैंने अपनी पीपीटी को स्लाइड शो मोड पे किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स पता होंगे। आपने आई थिंक पीपीटी के बारे में कल डिटेल में पढ़ा होगा। तो हम इसको कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो मैं एक बार देख पाती हूँ मेरी सारी स्लाइड्स। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्लाइड, हर एक स्लाइड पर टाइटल जरूर दें, तो आप उसको ब्राउज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास के बाद मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए मुझे किसी स्लाइड पर जाना है, तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ ब्राउज करके कि मुझे कौन सी स्लाइड पर जाना है और आपको अभी क्या दिखाना है। तो ये मैं इस स्लाइड पे जा सकती हूँ। कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट। और इसी तरह से अगर हम चाहें तो एक बार फिर से आती हूँ मैं स्लाइड पे। कंट्रोल एस आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड आपके पास होता है कंट्रोल पी। जब आप करेंगे तो आपके पास एक पॉइंटर आ जाएगा। आप देख सकते हैं मुझे एक रेड कलर का पॉइंटर दिख रहा है। अगर आपको इस तरह से नहीं दिख रहा है तो आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। आपके पास बॉल पॉइंट पेन का ऑप्शन है, फेल्ट टिप पेन एंड हाइलाइटर एंड इरेजर एंड इरेज ऑल इन, ये सारे। और डेफिनेटली आपके पास एरो के भी ऑप्शन होते हैं, विजिबल रखना है, ऑटोमेटिक रखना है। तो आप यहाँ से अपना पेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल दो जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन देते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको पेन का ऑप्शन देते ही हैं। लेकिन अगर आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं या आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, इवन क्लासरूम में भी जब मैं पढ़ाया
करती थी पीपीटी से, तो आई यूज टू यूज दिस कि हमने यहाँ से कोई पेन सेलेक्ट किया और डेफिनेटली हम यहाँ से इंक कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने पर्पल कलर कर लिया है, तो आई कैन राइट विथ पर्पल कलर। अब कुछ लिखा है उसे मैं इरेज करना है, डेफिनेटली अभी जैसे मैंने बताया आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड कि आप जो भी टूल यूज कर रहे हैं उसके थोड़े बहुत शॉर्टकट याद कर लें। तो इसको मैंने ई किया, सारा चला गया। आई थिंक ई से आपका सारा चला जाता है और कंट्रोल ई से आपका इरेजर आ जाता है। तो जैसे आपने फिर से ये किया, आपने कुछ लिखा और आप कंट्रोल ई करेंगे तो यू विल गेट एन इरेजर कि आप पर्टिकुलर अभी वाली राइटिंग को अपना डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी राइटिंग ऑन द स्क्रीन की बात। अभी कुछ और चीजें हम देखेंगे। आई थिंक मैं आपके डाउट सेशन के बाद में ही लूंगी। 2 मॉनिटर मैं यूज में ले रही हूँ डिम्पेश, तो मैंने इनको जोड़ा हुआ नहीं है क्योंकि एज ऑफ नाउ मैं क्या कर रही हूँ कि अपने एक मॉनिटर से अपना प्रेजेंट कर रही हूँ और दूसरे मॉनिटर में मैंने जूम ओपन करके चैट ओपन किया हुआ है। ऑल्दो जूम में ऐसा होता है कि जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं कई बार हम चैट को साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, बट स्लाइड शो मोड में वो मोस्टली काम नहीं करता है। वो अगर मैं एक्सेल या किसी और में काम कर रही हूँ या आपको ब्राउजर दिखा रही हूँ तो मैं साथ में चैट भी देख सकती हूँ, बट स्लाइड शो मोड में पढ़ाते टाइम अगर मैं स्टूडेंट का चैट देखना चाहती हूँ तो ड्यूअल मॉनिटर हम काम में ले सकते हैं विदाउट कनेक्टिंग। दोनों में मैंने जूम खोला हुआ है। अदरवाइज कुछ वीडियोस हैं जो आपको नेट पर मिल जाएंगे, जब आप 2 से 3 मॉनिटर को किस तरह से कनेक्ट करना है उसके बारे में उस पर जानकारी होती है। आप उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। या आप गूगल मीट काम में ले रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन आना चाहिए कि जब आप ये करते हैं ऑप्शन, एक मिनट मैं बाद में आपको लास्ट में दिखाऊंगी ये चीज कि आप उसको रीस्टोर करके रीसाइज करके गूगल मीट की चैट पढ़ सकते हैं। क्योंकि पिछला मेरा वेबिनार जो था वो गूगल मीट के साथ था, मुझे चैट पढ़ने ही थे, तो ये यहाँ से ऑप्शन होता है। आप इसको रीस्टोर करें और डेफिनेटली आप इसको ब्राउज करके यहाँ लगा लें। ये शायद फिर से मैक्सिमम हो गया। इसका साइज आप चेंज करके रीसाइज करके लगाएं अपनी स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं। आप यहाँ से मेरा ब्राउजर भी पढ़ पा रहे हैं, ये कुछ कोडिंग का खुला हुआ है, सी प्रोग्रामिंग, और यहाँ से आप मेरी पीपीटी भी पढ़ पा रहे हैं। तो मैं इस तरह से गूगल मीट अगर यूज कर रही हूँ, उसमें मुझे चैट शेयर का और कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिला था, तो मैंने गूगल मीट की चैट यहाँ पे ओपन करके रखी थी और यहाँ पे मैंने अपना जो भी एक्सेल में उस दिन मैंने अपना वेबिनार लिया था उसको मिनिमाइज करके रख दिया था। तो जब मैं एक्सेल में या पीपीटी किसी में भी यहाँ काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पर चैट अपना पढ़ सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। आई थिंक आप देख सकते हैं। अभी के लिए हम जाते हैं फिर से स्लाइड शो मोड में। आपको एक्चुअली अपना वर्क अराउंड निकालना होता है कि आपका सेशन किस टूल पर है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। Let me share you. Actually, I had added some nice things in this one. Let me open this PPT. Yeah. So making it effective. I think I'm getting confused between the copy and the original file. In the original file, I had added some animations, but anyways, we can do. I think you all know the hide slide option, which you could see. मैंने अभी अपना ओपन किया था न्यू स्लाइड, तो हाइड स्लाइड का ऑप्शन आपको दिखा होगा। कई बार हम स्लाइड बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम स्लाइड को हाइड करें, प्रेजेंटेशन के टाइम नहीं दिखे लेकिन हमारे पास वो रहे, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। स्लाइड को जब आप पीपीटी में शेयर करते हैं भी आपके पास ऑप्शन होता है। सॉरी, स्लाइड को जब आप पीडीएफ में सेव करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसको हाइड वाली स्लाइड को भी पीडीएफ में दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, ये सारे ऑप्शन होते हैं। एनलार्ज लेजर पॉइंटर इन पीपीटी बहुत सिंपल है। आप राइट क्लिक करें और यहीं पे आपका कहीं एरो का ऑप्शन है, यहीं कहीं होगा। हाइलाइटर का ऑप्शन कहीं अलग से होगा, आपका स्क्रीन कहीं पे होता है ऑप्शन, आप देख लेना। आई थिंक मैं तो ये ज्यादा एरो वाला यूज कर लेती हूँ। हाइलाइटर का ऑप्शन होता है पीपीटी में, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। और वैसे अगर आप अभी जो जूम यूज कर रहे हैं, अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा, जूम में भी एक ऑप्शन होता है, उसमें आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं और हाइलाइटर का आप साइज वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ किसका क्या शॉर्टकट है, बट जब आपको यूज करना हो तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर उसको कर लें तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे इनकी,
तो बेसिकली हम इनमें से ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, काफी चीजों की हम बात कर चुके हैं कि प्लेटफॉर्म टूल या बिहेवियर सेट करना है या हमें किस तरह से लिखना है, इसकी भी हम और बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें जिसकी हमने बात नहीं की है अब तक, इंटरेक्टिव पेडागोजिकल टूल्स, ये अगर टाइम रहता है तो ही मैं आपको बता पाऊंगी। बेसिकली आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, एक बहुत सारे ऐसे पेडागोजिकल टूल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए। और ये मैं अपनी क्लासरूम में भी यूज किया करती थी। तो अगर टाइम रहता है हम कुछ ये वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब, सिमुलेशन, इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अगर टाइम रहता है तो। और अभी हम बात करते हैं ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स की। तो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं मैंने कंट्रोल A प्रेस किया तो मेरा पॉइंटर चला गया, फिर से ये वाला एरो आ गया जो क्लिकेबल है। अब ये सारे कॉमन प्लेटफॉर्म है, मैंने लगभग सभी को यूज किया हुआ है, इसीलिए मैं शायद किसी एक पे फीचर्स आपको नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि किसमें क्या बेटर था। लेकिन गूगल क्लासरूम या गूगल मीट जो है आप में से ज्यादातर लोग यूज करते हैं। मेरा फेवरेट अभी तक तो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल है। टीम्स मुझे कम पसंद है टीचर्स के लिए, बिजनेस मीटिंग्स के लिए इट्स ग्रेट टूल, लेकिन टीचर्स के लिए उतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि कुछ ऑप्शन जो टीचर्स को चाहिए होते हैं वो टीम्स में नहीं होते हैं। वेबएक्स ऑब्वियसली इट इज फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट, तो मैं उन्हीं के लिए यूज करती हूँ। जूम इट इज देयर, फ्री है, लेकिन इसके फ्री वर्जन में तो कुछ लिमिटेशन है कि 45 पार्टिसिपेंट ही आप ले सकते हो, टाइम लिमिट भी है, नहीं 45 मिनट्स तक ले सकते हो, ऑल दोस। और MHA ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप जूम का यूज कम करें और अगर करना ही है तो कौन सी आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जूम के लिए। तो ये आप चीजें देख सकते हैं। मैंने कुछ में हाइपरलिंक लगाया है जहां पे आप पर्टिकुलरली क्लिक करके, ये आपको आई थिंक आपने कल सीखा होगा प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक या एक्शन बटन लगाना, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि इन टूल्स के क्या क्या फीचर्स हैं। बट ये ऑप्शन आपके पास तभी है अगर आपको फ्रीडम है चूज करने की। अगर आपके कॉलेज ने बोला हुआ है कि आपको इसी टूल से करना है तो ये आपके काम का नहीं है, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप देख सकते हैं। जैसे ये आपका गूगल का फीचर्स लिखे हुए हैं कि आप 1 घंटे के लिए, बेसिकली फ्री वर्जन के फीचर लिखे हुए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ आपको येलो दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइट कैसे किया हुआ है उसके लिए मैंने एक हाइलाइटर यूज किया हुआ है। ये देखिए, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट H करती हूँ ये लो हो जाता है, तो मैं आपको ये दिखा पाती हूँ और मैं इसको कॉपी भी कर सकती हूँ। और मैं इसको कुछ वर्ड खोला हुआ है मैंने, तो कंट्रोल N, यहाँ पे मैं अपना पेस्ट भी कर सकती हूँ जो भी मैंने कॉपी किया हुआ है। आई थिंक कॉपी तो आप भी कर पा रहे होंगे, लेकिन हाईलाइट वाला ऑप्शन जो है हाईलाइटर से मैंने किया हुआ है। तो इस तरह के मैंने कुछ लिंक्स डाली हुई है इस पे, आप चेक करके देख सकते हैं जहां पे पर्टिकुलरली इनके कौन से फीचर से कंपेयर कर सकते हैं। और जूम की कुछ एडवाइजरी अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वो लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं एक्शन में इन सब चीजों की जो हम यूज करते हैं। ऑल्दो मैंने इनमें से काफी में एक्शन बटन लगाए हुए हैं जो आई थिंक आप अभी क्वेरी सेशन में पूछ ही रहे थे। एक्शन बटन या हमें वॉइस भी लगाते हैं, कुछ में मैंने वॉइस भी लगाई है क्लैप की और जस्ट सम फनी वॉइस सो दैट यू एंजॉय। बट अभी मैं अगर एक एक को क्लिक करूंगी तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है उसको काम करने में, तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। स्क्रीन पे लिखने के लिए पावर पॉइंट पे तो हमारे पास ये पेन का ऑप्शन है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि जब हम मैं जब इसको क्लोज करूंगी आपको ऑप्शन बताऊंगी कि आपको अपनी राइटिंग को सेव करना है या सेव नहीं करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। आपके पास और भी कुछ टूल्स होते हैं, जैसे एपिक पेन है। एपिक पेन आप नेट पे गूगल कर सकते हैं। एपिक पेन एक इस तरह का छोटा सा टूल है और बहुत हैंडी टूल है। आप चाहें इसको ड्रैग करके कहीं भी रख दें अपनी स्क्रीन पे, जैसे आप PDF, एक्सेल, कोडिंग, पाइथन, R, C कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अपना ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, इसको साइड में आप रख सकते हैं। ये मेरे पास पेड वर्जन है, आप फ्री वर्जन भी ले सकते हो, उसमें कुछ थोड़े से फीचर कम ज्यादा हो सकते हैं। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे पेन का ऑप्शन होता है, तो आप जैसे इसके पेन से लिख सकते हैं। अगर आपके पास पेन टेबलेट नहीं भी है तो भी आप माउस का यूज करके आप उसको लिख सकते हैं। मैंने अभी उसी तरीके से लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ये टेक्स्ट अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको मैं ये भी एक बात बताती हूँ कि ये तो अभी मैं अपना PPT में कर रही हूँ। एक सेकेंड, मुझे इसको एस्केप करना। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ PPT में ही इसको यूज कर सकते हैं। आप बेसिकली ये देखिए, जब मैं अपनी PPT बंद करती हूँ, एस्केप मोड से स्लाइड शो मोड से नॉर्मल मोड में जाती हूँ, हर बार ये पूछता है डू यू वांट टू कीप इन एनोटेशन और डिस्कार्ड।
डिस्कार्ड का मतलब आपने जो भी स्क्रीन पे लिखा है वो अब डिलीट हो जाएगा, आपकी पीपीटी फिर से क्लीन हो जाएगी। लेकिन आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं मेरी इक्वेशन लिख ही रहे स्लाइड पे, तो आप कीप वाला ऑप्शन क्लिक करें। अभी के लिए मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। मैं यूजुअली टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या करती हूँ कि ब्लैंक पीपीटी ऐड कर देती हूँ, उसमें लिखा जाता है पेन से, और फिर मैं कीप ऑप्शन करती हूँ, तो वो मेरे पास रह जाता है ऑप्शन का। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे एपिक पेन यूज करके बताती हूँ, क्योंकि एपिक पेन आप पीपीटी पे ही नहीं कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो आई डोंट नो मेरा थोड़ा सा स्लो क्यों चल रहा है अभी। यहाँ से जैसे मैंने अपना पेन लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। अब ये मेरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो आप जैसे कोई ब्लॉग से या कोई आपने ई बुक खोली हुई है, उसमें पार्टिसिपेंट को कुछ बता रहे हैं, वहीं पे आपने कमेंट लिख दिए हैं। अगर आप उनको कोई प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन ब्राउजर में कराते हैं, जैसे मैंने शायद यहाँ पे एक सी का खोला हुआ था, आई थिंक मुझे उसके लिए फिर से यहाँ जाना होता है जब मुझे कुछ और ब्राउज करना है, तो इसको बंद करते हैं। बहुत सारे ये जैसे सी प्रोग्रामिंग में तो सिखा रही हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट गुड एट सी, मैं तो आर और पाइथन सिखाती हूँ। बट अगर हम यहाँ पे कुछ कोड लिख रहे हैं, ये ब्राउजर है वर्चुअल ब्राउजर, जो प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होते हैं इस तरह के ब्राउजर, क्योंकि उन्हें लाइव मिल जाता है, वो अपने सिस्टम पे करेंगे, कोड रन करेंगे, स्टूडेंट आउटपुट देख पाएंगे एंड सो ऑन। लेकिन आप कोडिंग बताते टाइम बहुत कुछ होता है ना, टीचर को हैबिट होती है लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है। आप शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने सर्कल बना दिया अपने स्क्रीन पे, जो भी आपको बनाना है। पर्टिकुलर आपको कुछ इरेज करना है तो यू हैव इरेजर। यहाँ से आप अपना पेन का साइज भी चूज कर सकते हैं। आपको कुछ बहुत थिक लिखना है या एरो बनाना है कुछ थिक वाला, तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको साइज। और बहुत सारे फिर आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर स्क्रीन, कंट्रोल शिफ्ट 7 से आपने जितना भी अभी कुछ लिखा है वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ये ऑप्शन होता है व्हाइट बोर्ड। आप जैसे पढ़ा रहे हैं, सपोज आपका प्लेटफॉर्म आपको व्हाइट बोर्ड नहीं देता है, और तो हमारे पास बहुत ही सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपके पास अगर नहीं है, आप इसका भी व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो। इसके व्हाइट बोर्ड पे आप लिख सकते हो। अब जो कुछ आपने लिखा है उसको आप शेयर कैसे कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पहले तो हम बंद करते हैं। आप किसी भी स्क्रीन पे, आप पीडीएफ खोला हुआ है, आपने एक्सेल खोला हुआ है, वर्ड फाइल खोली हुई है, जो भी कुछ आपने खोला हुआ है, आई थिंक मैंने कुछ कर दिया है, डिलीट करते हैं इसको। या जो भी कुछ आपने खोला हुआ है उसके अंदर आप इस पेन से लिख सकते हैं, और फाइनली आप उस इमेज को सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कहीं पे, टेक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है एक तो इसमें। तो आपने जो लिखा है, पहले मैं कुछ लिख लूं फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने कुछ पेन लिया है और जस्ट रेंडम मैंने कुछ ड्राइंग बनाई है। अब यहाँ पे कैमरा आइकन है, कंट्रोल शिफ्ट 8। हाँ, मैं इसका शॉर्टकट भूल गई थी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों का शॉर्टकट यूज करती हूँ तो मिक्स हो जाता है। अगर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। आप इस प्लस आइकन को इस तरह से सिलेक्शन के लिए काम में ले सकते हैं। तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, जैसे ही मैं इस प्लस आइकन को छोड़ती हूँ, आप देखते हैं कितना परफेक्ट टूल है ये। यहीं पे आपको ऑप्शन आ जाता है सेव का या कॉपी टू क्लिपबोर्ड का। सपोज आपने कोई डायग्राम बनाया है, जैसे आप कुछ बायो इकोनॉमिक्स जैसे किसी ने पूछा है, ऐसा कुछ बना रहे हैं, आपने कोई कर्व बनाया है, तो आपने पेन यूज करके यहाँ पे कर्व बना दिया। अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड बता रही थी, व्हाइट बोर्ड पे आप अपना कर्व बना सकते हैं। हमारे पास ग्राफ पैड भी होता है जिसपे हम बना सकते हैं, ब्लैंक पीपीटी पे भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हम कहाँ बनाए, या और कुछ नहीं तो सिंपल आपके पास वर्ड फाइल है उस पे आप बना लीजिए, पेंट पे बना लीजिए, पीपीटी पे बना लीजिए, कहीं भी आपने इसका यूज करके कोई डायग्राम बनाया है। दो ऑप्शन है, आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते हैं तो ये आपके पास कॉपी हो गया है, तो आप इस डायग्राम को कॉपी करके अपनी पीपीटी पे या कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। और बेटर ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। जब आप सेव करते हैं, देखो इसने आपसे कुछ भी नहीं पूछा है, इसने आपसे नाम लोकेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये आपका डेस्कटॉप पे सब कुछ सेव करता है। एक इसमें ये आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने पेन यूज किया था तो ये पेन ही लगा हुआ है। तो अगर मुझे पेन से आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता था जब मैं यूज्ड टू नहीं थी, तो हमें वापस ही एरो पे क्लिक करना होता है। मेरा पेन चला गया है, लेकिन पहले मैं अपनी क्लियर स्क्रीन कर दूं, क्योंकि जब तक आप ये क्लियर स्क्रीन नहीं करेंगे, अभी मैंने लिखा यहाँ है, जब मैं पीपीटी पे जाऊंगी तो वो पीपीटी पे फिर से वही वाला आ जाता है हमारा
जो हमने ड्राइंग बनाई हुई है। अभी मैं बात कर रही थी सेव कहाँ हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव होता है। आई थिंक आप ओपन करके देख लेना, मैं बहुत कुछ खुला हुआ है, ये रहा जो पोर्शन आपने सेलेक्ट किया था वही सेव हुआ है। तो कई बार आप ई बुक दिखा रहे हैं और उस ई बुक के अंदर आपने कोई पर्टिकुलर चीज लिखी है और उस चीज को सिलेक्ट करके आपने कॉपी की है, तो वो सेव हो गया और आप उसको यहाँ से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ सेव होता है। अगर आप चाहते हैं ये कहीं और सेव हो तो इसकी सेटिंग्स, एक मिनट, बहुत कुछ खोल दिया। अगर आप चाहते हैं कहीं और सेव हो तो ऑब्वियसली आप इसकी सेटिंग्स होती है उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ कई सेटिंग्स होगी। और फाइनली अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं आप तो क्विट यूज करें। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप सभी एटलीस्ट इसको एक बार ट्राई कीजिए। ये जो है एपिक पेन नाम से गूगल पे आपको मिल जाएगा। Wait a moment. Control S. I was pressing Control S there, so it was asking me to save. Yeah. तो एपिक पेन आपको गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा, और अदरवाइज इसके बहुत सारे फ्री ऑल्टरनेटिव भी सर्च करेंगे, जो भी आपको ठीक लगता है फीचर पढ़ें और देख लें। अभी हम हाइलाइटर, इंस्टेंट कैलकुलेटर, ये सारे थोड़े से हम आपको एक्शन में ही दिखा देते हैं इंस्टेड ऑफ शोइंग देम इन पीपीटी। लेट मी टेक यू टू माय ब्राउजर। तो एक मिनट पहले मैं, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने कोई वेब पेज खोलना है, जैसे मुझे डेटा साइंस कुछ भी रैंडम, अभी मैंने कुछ भी खोला हुआ है, ये सारे आईडी आते हैं सबसे पहले, व्हाटएवर इट इज। अभी इसमें मुझे कुछ हाईलाइट करना है, ये मेरा वेब पेज कुछ खुला हुआ है, हाईलाइट करना, यहाँ पे मेरा टूल है हाईलाइटर का। ये सारे क्रोम एक्सटेंशन है, आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, और भी है मेरे जो मैंने स्पेशली यहाँ पे रखे हैं टास्क बार में, वो मैं इमीडिएटली यूज कर सकती हूँ। ये गूगल इनपुट का है, जो आपको इंग्लिश हिंदी कहीं पे भी टाइप करना है, स्विच करना है, उसके लिए है। और बेसिकली मैं यूज नहीं करती, आज ही मैंने डाला है आप लोगों को दिखाने के लिए। स्क्रीनशॉट का है, अभी मैं हाईलाइटर की बात करती हूँ। तो इससे क्या है, मैंने कुछ सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एच करूंगी मैं इसको, ये हाईलाइट हो जाएगा। तो हम कुछ ऑनलाइन बता रहे हैं, स्टूडेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके लिए भी इजी है। और मैं बेसिकली इसको किसके लिए यूज करती हूँ, जब मैं कुछ पढ़ती हूँ किसी वेब पे, ब्लॉग पे, वेबसाइट पे, क्यूए साइट पे, तो किसी पूरे वेब पेज में किसी आंसर में मुझे कुछ समरी चाहिए होती है जो मुझे इंपॉर्टेंट है और मुझे याद रखनी है, तो मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसके बहुत सारे और भी आते हैं ऑप्शन, आप किसी को भी डाल सकते हैं, 2 मिनट लगता है इस काम में, और ये आपकी लाइफ को बहुत ईजी करते हैं। हाईलाइटर, क्रोम एक्सटेंशन बेसिकली, सिर्फ हाइलाइटर मैं गूगल सर्च करती हूँ तो कुछ मेकअप वाला हाइलाइटर होता है, वो आ जाता है। ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, क्रोम एक्सटेंशन है सारे, मैंने ये वाला डाला हुआ है। लेकिन आप जब भी कोई एक्सटेंशन डालें, पहले आप उसको थोड़ा गूगल सर्च करें, आपके पास बहुत सारे सजेशन आते हैं, जस्ट लाइक मोबाइल ऐप, राइट। तो आप यहाँ से देखें, यहाँ पे उसका प्रीव्यू आता है कि वो हाइलाइटर क्या काम करता है, ये आपको बता रहा है कि आप अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आप नीचे जाके थोड़े बहुत इसके फीचर्स वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं, इसके रिव्यूज पढ़ सकते हैं, आपको ठीक लगता है तो डालें, अदरवाइज यहाँ पे और सजेशन भी आते हैं कि आपको ये वाला क्या काम करता है, ये इजी लग रहा है तो ये डाल लो, ये बेटर लग रहा है तो ये डाल लो। कुछ भी अपने टूल डिसाइड करो, उनको डालो टू मेक योर लाइफ इजी। अभी मैं आपको एक और अच्छा सा बताती हूँ जो मैंने डाला हुआ, इंस्टा कैलकुलेटर। जैसे आप बताते हैं, पढ़ाते हैं, सपोज फाइनेंस पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, या कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसमें आपको छोटी मोटी प्लस माइनस कैलकुलेशन वर्बल करनी होती है। क्लास में यूजुअली हम वर्बल कर लेते हैं कैलकुलेशन, स्टूडेंट भी साथ में कर लेते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने के लिए सिंपल कैलकुलेशन भी हम लिखते हैं बोर्ड पे, ताकि जो लोग उतना फास्ट मेंटल कैलकुलेशन नहीं करते वो रिलेट कर पाए। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मेरा फेवरेट बेसिकली इंस्टेंट कैलकुलेटर है, आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है, जैसे बहुत सारी रोज है, आप रोज और ऐड कर सकते हैं, डेफिनेट आप क्लियर कर सकते हैं जो भी आपने कुछ लिखा हुआ है, राउंड ऑफ कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन होते हैं। अभी मैं यहाँ पे इंस्टेंटली कुछ लिख रही हूँ, 52 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, और यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन इमीडिएटली दिख गई। ऑल्दो हम सबके पास लैपटॉप में कैलकुलेटर होता है, मोबाइल में भी होता है, बट ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंस्टेंट काम करता है, और इसके कुछ फीचर्स अमेजिंग हैं जो हमें इंस्टेंटली उस वाले में नहीं मिलते हैं। कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मुझे 20,000 + 300 करना है, तो मैंने 20,000 नहीं लिखा है, 20K लिखा है, क्योंकि हम रफली ऐसा लिखते हैं 45,000 तो 45K। वो समझ रहा है कि K मीन्स 45,000, तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली बताने
की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से कंप्यूटेशन कर देगा। एक और एडवांटेज है, इसमें आप वेरिएबल भी सेव कर पा रहे हैं। जैसे हमने लिखा है रेवेन्यू 500, एक्सपेंस 300, वो इसकी मेमोरी में सेव हो गया है। अब मैंने फॉर्मूला लगाया प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, उसने कर दिया है कंप्यूट। मुझे यहाँ 500 माइनस 300 देखकर नहीं करना पड़ रहा है, जो हम इस कैलकुलेटर में करते हैं, जो हमारे नॉर्मल लैपटॉप में कैलकुलेटर होता है, हमें नंबर्स डालने होते हैं। बट अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ करना है कि कुछ भी 30, तो ऑटोमेटिकली कर लेगा, उसको पता है रेवेन्यू अभी मेरा कितना है। अगर मैं क्लियर कर दूंगी तो फिर से मुझे देना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी मेमोरी में है। ये कैलकुलेशन मैंने काफी दिनों पहले की थी, अब तक वो इसकी मेमोरी में है, अनटिल अनलेस मैं उसको डिलीट ना कर दूं। और आप बहुत सारी रो ऐड कर सकते हैं, इसके बहुत सारे यहाँ पे और फीचर्स होंगे, हर एक में होते हैं नए फीचर्स जो आप चेक कर सकते हैं। और एक बहुत ही अमेजिंग फीचर इसका जो मुझे लगता है, कॉपी टू क्लिक टू कॉपी यूआरएल। तो मैंने एक ये यूआरएल कॉपी किया है, और अगर मैं यूआरएल ये आपको चैट में देती हूँ, ये अगर आप अपने, कहाँ गया मेरा चैट विंडो, बैक टू मीटिंग आई थिंक। अगर आप इस लिंक को कोई भी क्लिक करेगा तो उसको भी वही कैलकुलेशन दिखेगी। आई थिंक इसमें आपके पास वो होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, मुझे फास्ट करना होगा, तो अब हम जाते हैं यहाँ पे। तो हाइलाइटर, इंस्टाकैल, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर का ये आप ये देख सकते हैं, ये सारे पेडागोजिकल टूल्स है। वेब एप्लेट, वर्चुअल लैब, वर्चुअल रियलिटी, गूगल अर्थ जो अपनी क्लास में आप यूज कर सकते हैं। मैं इनके बारे में अभी बात नहीं कर रही हूँ। गूगल के कौन से टूल है जो टीचर्स के लिए बहुत यूजफुल है? गूगल क्लासरूम आप सब यूज करते हैं, गूगल जैम बोर्ड है, ये बेसिकली एक व्हाइट बोर्ड है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस पे सारी वही फंक्शनलिटी है कि आप सब कुछ लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। गूगल इनपुट टूल और ट्रांसलेटर बेसिकली लैंग्वेज के लिए है। इनपुट टूल मैंने डाला हुआ है, तो इसका क्रोम एक्सटेंशन भी डाला हुआ है, अदरवाइज आप ऑनलाइन इनपुट टूल भी यूज कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश स्विच करने के लिए। और ये सारे आप आई थिंक आप सभी यूज करते होंगे। इनमें से कोई पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता सकती हूँ आपको। असेसमेंट के लिए गूगल फॉर्म पे हम डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये देखिए मैंने क्विज डाली है, और ये मैंने कुछ नहीं, सिर्फ एनिमेशन लगाया हुआ है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। एक्चुअली मेरी शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, अदर जो पीपीटी थी उसमें, हाँ इसमें लिखा है करेक्ट आंसर कौन सा है, तो आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर एपिक पेन बता रहा है वो यहाँ पे आपको। असेसमेंट के कौन से टूल होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। गूगल फॉर्म जो है बेसिकली इट इज ओनली फॉर क्विज, तो यूजुअली ये यूज होता है एमसीक्यू के लिए। आप इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, बहुत सारे फॉर्मेट आप डाल सकते हैं। बट ऑटो चेकिंग बेटर तो इसी के लिए होती है, या फिर आपके जो मल्टीपल ग्रिड फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, अभी हम देख लेंगे थोड़ा सा किसके लिए आप कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में आप असाइनमेंट क्विज वगैरह कैसे शेयर कर सकते हैं, उसके ग्रेड आ जाते हैं ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट में, सब कुछ आप रूब्रिक सेट कर सकते हैं। इस सब का आई थिंक आपका एक सेशन होगा जिसमें आप बात कर सकते हैं। आई थिंक उसमें आपको ये सब सिखाया जाएगा। काहोट एक नाइस टूल है, क्विजेस भी, क्विज के लिए आप बाद में देख सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए अभी हम गूगल क्विज में भी अगर टाइम रहता है तो आपको बताएंगे कि कैसे मैथ इक्वेशन, इंटरेक्टिव ग्राफ सब कुछ डाल सकते हैं। अदरवाइज मूडल अगर आपके कॉलेज में है, एक्चुअली कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर मूडल का एक्सेस लिया हुआ है, एलएमएस लिया हुआ है, तो यू कैन यूज मैथ्स के लिए पर्टिकुलर इसका जो स्टैक प्लगइन है, दैट इज वंडरफुल। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम आप उसमें कर सकते हैं। लॉकडाउन ब्राउजर एक ब्राउजर है, तो आप चीटिंग को रोक सकते हैं। बेसिकली जब आप कर रहे हैं अपना कुछ एग्जाम ले रहे हैं, तो ये आपका, अगर आप क्लिक करके देखेंगे फीचर्स है कि वो पार्टिसिपेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, वो फुल स्क्रीन मोड में ही रहेंगे, वो विंडो चेंज नहीं कर पाएंगे, वो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, कैप्चर नहीं कर पाएंगे, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। तो बेसिकली चीटिंग रोकने के लिए इट्स गुड थिंग। ये और भी सारे टूल्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी हम बात नहीं करते हैं। आपने कल के लेक्चर में देखा होगा कि आप किस तरह से अपना ऑडियो, वीडियो, पिक्चर कुछ भी एम्बेड कर सकते हैं वीडियो में, पीपीटी में। तो ये मैंने अपना वीडियो एम्बेड किया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको ये भी दिखाना चाह रही थी कि इस तरह की इमेजेस, मूविंग इमेजेस, वर्चुअल रियलिटी, तो बेसिकली पार्टिसिपेंट इजीली आपका कंटेंट समझ पाए, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। एब्स्ट्रैक्ट आप थ्योरी मत बोलिए, टेक्निकल सब्जेक्ट में आप यहाँ से उनको बता सकते हैं
डिफिकल्ट कंसेप्ट इजीली समझा सकते हैं, उनके लिए ये समझना आसान होगा। जैसे अगर आप पैराबोला बताएंगे, वैसे ये सपोर्ट वेक्टर मशीन का डायग्राम है, बट आप उनको इस तरह के डायग्राम से बताएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आप एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे कि हम हाइपरप्लेन ये करते हैं वो करते हैं, तो उतना इफेक्टिव वो नहीं समझ पाएंगे। और आप अगर कुछ ऐसी चीज समझा रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट टिप है, जब आपको कुछ लिखना नहीं है, पीपीटी नहीं दिखानी, समझाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे इंटरेक्ट करें। आप खड़े होकर भी अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जैसे क्लास में देते हैं। आप लैंग्वेज टीचर हैं, खड़े हुए हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, एनर्जी के साथ उनसे बात कीजिए। ये सारी मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह की आप एनिमेशन प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं, और ये सारी हैंडमेड एनिमेशंस है और काफी सारी मैं यूज करती हूँ जो आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाती है। ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे आपको टीचिंग रिलेटेड रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आप ये बाद में देख सकते हैं। ये किन किन टॉपिक्स पे मैं बात करती हूँ, ये मेरी कुछ क्यूए साइट से रिसर्च गेट और पूरा प्रोफाइल है जहां मैं आंसर लिखती हूँ, या मेरा यूट्यूब चैनल है, उन सब के लिंक्स है। तो अभी आई थिंक मैं आपको गूगल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। रेनू मैम, गूगल फॉर्म पे क्विज लेना है, उसी के बारे में हम बात करें, या कुछ और स्पेसिफिक जो है मैथमेटिकल और लैंग्वेज टूल वो भी हम दिखाएं? नहीं मैम, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, तो हम जितना हो सके उतना जल्दी सिर्फ क्विजेज वाला ऑप्शन आप दे दें, ताकि वो असाइनमेंट के तौर पे हम लोग सीख सके कि कैसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। निशा मैम, आप अनम्यूट होइए प्लीज, आप म्यूट। तो आप ये देख रहे हैं, ये गूगल फॉर्म है, एक क्विज के फॉर्मेट में मैंने इसमें सेक्शन भी डाला है। आई थिंक फैकल्टीज जो सर्वे करते हैं, आपको गूगल फॉर्म बेसिक बनाना आता होगा, तो बेसिक पे हम बात ज्यादा नहीं करेंगे, टाइम की भी शॉर्टेज है। आप देख रहे हैं मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज किया है। हिंदी का यूज करने के लिए अभी मैं बताऊंगी, जब हम टाइप करते हैं तो ये वाला मैंने यहाँ जो एक्सटेंशन डाला है उसका यूज किया है। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है गूगल इनपुट टूल ऑनलाइन, आप यहाँ से भी ऑनलाइन गूगल इनपुट टूल करेंगे सर्च तो आपको मिल जाएगा। अगर आप क्रोम एक्सटेंशन नहीं डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, ये जस्ट मैंने आज ही के लिए इंस्टॉल किया है। आई विल रिमूव दिस अगेन। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक फॉर्म की बता रही थी कि आपने पहले क्वेश्चन के बाद आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन इस फॉर्म में मैंने डाले। मैंने इसमें मैथ इक्वेशन भी डाली है। ये मैंने किसी और टूल से डाला था, बट वो मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगा। ये सब तरह की इक्वेशन, ग्राफ, केमिस्ट्री की ये सब हम डाल सकते हैं। अभी मैं उस ऑप्शन को थोड़ा सा क्विकली आपको बता दूं, तो आप इसको एक बार हम क्वेश्चन तो मैंने रैंडमली आपको दिखाने के लिए डाला है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। विच इज नॉट अ गूगल प्रोडक्ट, तो आई एम फिलिंग दिस। कुछ भी रैंडमली मैं अभी फिल कर रही हूँ। विच टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन स्क्रीन। अभी मैं रैंडमली कुछ राइट आंसर, कुछ रॉन्ग आंसर फिल कर देती हूँ। यहाँ पे फेवरेट फॉर्म आर यू यूजिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस? ओके, यहाँ पे एक वैलिडेशन आ रहा है, कौन सा फेवरेट गूगल, आर यू श्योर इट इज अ गूगल प्रोडक्ट, डिड यू फॉरगेट राइटिंग गूगल इन द नेम? तो इसका मतलब आपको कोई गूगल प्रोडक्ट ही लिखना है यहाँ पे। तो मैं एक बार लिख देती हूँ कोई गूगल प्रोडक्ट, और आपको सिर्फ मार्क्स का बता रही हूँ मैं कि सपोज आप कुछ भी लिखते हैं। अभी मैं रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ और आपको जस्ट पॉइंट का बताना चाह रही हूँ मैं। कुछ भी रैंडम क्वेश्चन और कुछ भी रैंडम आंसर मैं अभी बता रही हूँ। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन, ये मैंने मल्टीपल ग्रिड डाला है। अब मैं सबमिट कर रही हूँ और अच्छा 20 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। ये लो 20 कैरेक्टर्स, फीडबैक मुझे 20 कैरेक्टर्स में से। कई बार कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए होते हैं कि कंपल्सरी क्वेश्चन है वो आपको फिल करना ही है, ऐसे आंसर देना है। तो आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। हमने बनाई कैसे, अब हम उसकी बात करते हैं। आपको यहाँ स्कोर दिख रहा है, मुझे 20 में से 5 मार्क्स से मिले, वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा भी आ रहा है कि जैसे पहला क्वेश्चन था, मैंने जूम आंसर लिखा, करेक्ट आंसर 1 पॉइंट मिल गया है। कौन सा टूल स्क्रीन पर लिखने के लिए
यूज में आता है। तो एपिक पेन राइट आंसर था, मैंने हाइलाइटर लिखा आ रहा है करेक्ट आंसर ये, मुझे 0 कॉन्स में मैंने कोई करेक्ट आंसर सेट नहीं किया हुआ था तो स्टूडेंट को 0 मार्क्स मिला है, लेकिन एज अ टीचर मैं उसको बाद में मार्क्स दे सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है करेक्ट आंसर है तो मैं उसको मार्क्स दे सकती हूँ। आप सभी अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो उसमें आपके पास गूगल ड्राइव होती है और गूगल ड्राइव में भी आप जा सकते हैं, सॉरी आप जीमेल अकाउंट पे ये जो इस तरह की ग्रिड आती है, आपका जो भी मेल है उस पे भी इस तरह की ग्रिड आती है, मैं मेल आपको शो नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस ग्रिड में भी आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ से जाने का, गूगल फॉर्म पे जाने का, या फिर आप सिंपली यहाँ पे भी जाके शायद forms.google ऐसा कुछ होता है लिंक, और क्लिक कर सकते हैं forms.google, तो ये यहाँ पे आपका फॉर्म्स खुल जाता है, उसमें आपको साइन इन करना पड़ता है आपकी किसी जीमेल आईडी से, और आप यहाँ पे क्योंकि ऑटोमेटिक साइन किया हुआ है तो उसने ये बताया ब्लैंक फॉर्म या टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मैम? या मैम, इट्स ऑडिबल। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पे फॉर्म का कुछ नाम लिखना है, आप नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी नाम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। ये बेसिक आई थिंक आपको पता होगा कि आप यहाँ से क्या क्या ऐड कर सकते हैं। क्विकली अगर मैं बताऊं, यहाँ इंपोर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोई फॉर्म बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि उस फॉर्म के क्वेश्चन एज इट इज आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाए, या आप ब्राउज कर सकते हैं जितने फॉर्म आपने पहले बनाए हुए हैं, और किसी भी फॉर्म के आप क्वेश्चन उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बोलता है आपको सारे क्वेश्चन इंपोर्ट करने हैं पिछले फॉर्म के, या कुछ सिलेक्टेड ही करने हैं। कई बार हम सेम क्वेश्चन डालना चाहते हैं अलग अलग क्लासेस के एग्जाम में, तो हमने फिर ठीक है सिलेक्ट कर लिया कौन से करने, तो उसने सारे इंपोर्ट कर दिए। तो अभी के लिए हम ये देख रहे हैं, आई थिंक आ गए हैं इसमें। और अदरवाइज आप क्वेश्चन डाल भी रहे हैं, जैसे ये मैंने न्यू क्वेश्चन डाला है, तो आप एक बार देखिए यहाँ आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। जैसे आपने टाइप किया कैपिटल ऑफ इंडिया, अब पूरा लिखना चाहिए आइडियली, इंग्लिश, हिंदी में, मैथ्स में, जो भी आपको लिखना है। बाय डिफॉल्ट ये एमसीक्यू होता है क्योंकि ये बना इसी के लिए होता है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहते हैं शॉर्ट आंसर करना तो वो भी कर सकते हैं, और बहुत सारे अभी हम देख लेते हैं। अगर एमसीक्यू है, आपका पास पहला ऑप्शन आता है जो भी आपने लिखना है, सपोज मैंने दिल्ली लिख दिया, ऐड अदर ऑप्शन, या एंटर करेंगे तो आप मुंबई लिख सकते हैं, एंटर करेंगे आप कोलकाता लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है, और चेन्नई लिखना है, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। या फिर ऐड अदर का ऑप्शन, आप चाहते पार्टिसिपेंट के पास कि इन चारों के अलावा और कुछ हो सकता है, तो ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। अपना ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को कंपल्सरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को कॉपी करना चाहते हैं ताकि इसी को एडिट करके नया क्वेश्चन बन जाए, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। इस तरह की चीजें तो आप कर ही सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे एक वैलिडेशन का भी ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने क्वेश्चन को वैलिडेट कर सकते हैं। वो एमसीक्यू में नहीं होगा। शॉर्ट आंसर टाइप किया तो अब बंदे को कैपिटल का नाम लिखना है, तो कैपिटल का नाम उसको लिखना है, तो ऑब्वियसली टेक्स्ट ही होते हैं। अगर किसी ने जस्ट फॉर फन 1 2 3 लिख दिया तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करें। हमने उसको लिख दिया, आपको टेक्स्ट में ही आंसर देना है। हम यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कितने कैरेक्टर मिनिमम या मैक्सिमम, या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, या अगर हमने ईमेल आईडी पूछी है तो ईमेल आईडी ही है या नहीं है, यूआरएल पूछा है यूआरएल ही है या नहीं है, कुछ भी टेक्स्ट लिख के सबमिट कर दिया। इस तरह की हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। अगर आपने कोई नंबर पूछा है, सपोज आपने एज पूछी है और आपने शॉर्ट आंसर किया है, सॉरी, तो आप ये वैलिडेशन नहीं लगा के आप एज के लिए वैलिडेशन लगा दे कि एज तो जो है नंबर होना चाहिए, 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए, 200 से छोटा होना चाहिए, कुछ भी आपने जो मल्टीपल चॉइस और बहुत सारे ऑप्शन है। अब आई थिंक मैं इस पे टाइम ना बिताऊं, मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको ये फॉर्म क्विज के फॉर्मेट में करना है तो कैसे करें। इसमें ये ऑप्शन हम देख चुके थे। इसके बाद आप टाइटल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इमेज वीडियो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने सेक्शन ऐड किया था वैसे आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं, तो आपका वो नेक्स्ट पेज पे दिखेगा जब आप प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ से आप प्रीव्यू देखते हैं। कलर थीम चेंज कर सकते हैं। ये आइकन आपके पास नहीं होगा, ये मैंने मैथ के लिए एड ऑन यूज किया था, बट ये मुझे
यूजलेस लग रहा है, मैं आपको इससे बेटर ऑप्शन बताऊंगी। क्विज के लिए आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में कुछ ऑप्शन होते हैं, एक तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आप चाहते हैं सभी पार्टिसिपेंट का ईमेल आपके पास आए तो आप उसको कलेक्ट करें, यानी वो लॉगिन करके फिल कर पाएंगे, तो हर कोई बंदा उस फॉर्म को फिल नहीं करेगा। एक ही रेस्पॉन्स चाहिए, तो जब आप क्विज लेते हैं आप यूजुअली चाहते हैं एक बंदा एक ही बार क्विज फिल करे। ऐसा नहीं है कि आप एक मेल आईडी से साइन करके 5-10 बार क्विज फिल कर दी। एडिट आफ्टर सबमिट ऑप्शन देना है या नहीं देना है स्टूडेंट को, कि गलती हो गई तो फिर से एडिट करें, ये आपकी चॉइस है। ये आप यूजुअली पसंद नहीं करते कि आपके पार्टिसिपेंट देख पाए। प्रोग्रेस बार उनको दिखनी चाहिए कि कितना % उन्होंने कंप्लीट कर लिया है या नहीं दिखनी चाहिए। क्वेश्चन शफल होने चाहिए हर स्टूडेंट के लिए, जितनी बार वो फॉर्म खोलता है तो होने चाहिए। कंफर्मेशन मैसेज आपको लिखना है कि थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग या ऑल द बेस्ट, व्हाटएवर क्विज खत्म होने के बाद दिखेगा, उनको लिख सकते हैं। क्विज बनाना है तो आपको मेक दिस अ क्विज करना चाहिए। 2 ऑप्शन ग्रेडिंग के हैं, इमीडिएटली ग्रेडिंग जो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने फॉर्म किया इमीडिएटली मुझे मार्क्स मिल गए। एक ऑप्शन होता है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, तो यूजुअली टीचर्स चाहते हैं ये करना है जिससे कि अगर आप को बाद में लगता है कि नहीं कुछ मार्क्स मुझे चेंज करने या ऑटोमेटिक ग्रेडिंग में शायद उतना परफेक्ट नहीं आएगा शॉर्ट आंसर या मैनुअल आंसर के लिए, तो हम उसको इस पे क्लिक करें। स्टूडेंट ये भी देख सकते हैं कि कितने करेक्ट आंसर या वैल्यू पॉइंट्स हैं उनके या मिस्ड क्वेश्चन से। तो ये सेटिंग आपने जो भी करनी है ये आप कर सकते हैं, इसको ओके कर सकते हैं। अब ये आपका क्विज में बन गया। तो जब आप इसको क्विज बनाते हैं आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा एज, अब यहाँ पे लिखा रहा है आंसर की जो पहले नहीं था। पहले मुझे आंसर की में डिसाइड करना कितने नंबर देने हैं, एरो की यूज करो या यहाँ से लिख दो, मैंने एज के 2 मार्क्स देने। अब मैं यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा था, 1 मिनट, ऐड अ करेक्ट आंसर। ऑल्दो ये कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका करेक्ट आंसर हो, बट मैंने ऐड अ करेक्ट आंसर में लिखा 25। तो अब जिसका भी आंसर 25 होगा वही तो करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आप टिक करें या ना करें आपकी चॉइस है। अगर ये टिक करते तो बाकी सारे आंसर इनकरेक्ट काउंट होंगे, अगर ये टिक नहीं करते तो आई थिंक सारे आंसर करेक्ट काउंट होंगे और फिर आपको जो गलत लगता है उसको आपको 0 करना पड़ेगा। तो ये आप टिक कर दें और डन कर दें। अब जब पार्टिसिपेंट एज 25 भरने पे उसको करेक्ट आंसर का नंबर 1 मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब ये चीजों में क्या क्या लिमिटेशन आती है, जैसे आपने ये कैपिटल ऑफ इंडिया किया, इसमें भी मैं आपको बताती हूँ। एमसीक्यू है, मैंने इसको 1 मार्क का क्वेश्चन बनाया। आप आंसर फीडबैक भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट कुछ हिंट देना चाहते हैं तो आप कुछ भी अपने मैसेज लिख सकते हैं, वुड यू टू रीथिंक, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ये हो सकता है वो, आपका हिंट लिख पाएंगे जब भी उनका आंसर, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं और डेफिनेटली आप इसमें आंसर की लगा सकते हैं। और आई थिंक डन, करेक्ट आंसर हमने इसमें दिया है, नहीं दिया है, ये डेडी करेक्ट आंसर आपने इसमें टिक करना होता है। आ गया आंसर की, शायद मुझे दिखाने का ऑप्शन अभी। इसके अलावा जैसे आप पार्शियल ग्रेडिंग आप करना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने पूछा है कि विच ऑफ द कोर्सेज यू आर इंटरेस्टेड टू चूज, ये मेरा आई थिंक मैंने सॉरी टू इंटरप्ट लिया है चेक बॉक्सेस वाला। चेक बॉक्सेस में पार्टिसिपेंट क्या करते हैं कि ओके टू वाइंड अप, या प्लीज मैम, you want me to wind up? Yeah, okay, just give me 2 minutes. तो चेक बॉक्सेस ऑप्शन में मल्टीपल आंसर वो टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पार्शियल ग्रेडिंग करनी है अनफॉर्चुनेटली ये फीचर गूगल फॉर्म में अभी नहीं है। उसका एक वे आउट है कि आप इस तरह के इसमें जो भी मैंने आपको फॉर्म दिखाया था इस तरह के क्वेश्चन इसमें बना के डालें, ग्रिड क्वेश्चन, जिसमें आप हर एक ऑप्शन का आंसर कर सकते हैं। इसमें आपका ये ऑप्शन का 1 मार्क है, ये ऑप्शन का 1 मार्क है, ये का 1 मार्क है। तो पार्शियल ग्रेडिंग को आप यहाँ से वेव ऑफ कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं आपको एक टूल और बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए मुझे बताना ही है, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। ये यहाँ पे आप देखो, मुझे कोई क्वेश्चन बनाना है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ग्राफ, कुछ भी करना है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, आपको ये आइकन दिख रहा होगा, ये मैंने एक एक्सटेंशन डाला है, इसके लिंक मैं आपको दे दूंगी क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा दिखाने में आपको। ये मेरे पास इक्वेशन आ रहा है, वंडरफुल एडिटर है, इसमें आप इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ जाती हूँ, एक तो इसकी सेटिंग में मैंने प्रेडिक्शन ऑन किया हुआ है, तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है तो मैं सिर्फ एक्स लिखती हूँ, वो सजेस्ट करता है डू यू वांट टू राइट एक्स स्क्वायर, लिख दिया मैंने। माइनस मुझे स्क्वायर रूट लिखना है तो मुझे फिर स्क्वायर रूट आ गया, सजेशन आ गया और मैंने लिख दिया 3। कुछ भी मुझे लिखना है वो सजेशन मुझे बता देता है कि मुझे क्या लिखना है। और ये जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, उसने ऑटोमेटिक इक्वेशन ले ली है। और हम आपको यहाँ से इसको अगर इंसर्ट करते हैं
तो ये क्वेश्चन हमारे इसमें इंसर्ट हो जाती है जहां पे भी हमारा कर्सर था। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, क्योंकि ये लिंक क्रिएट करता है फिर बनाता है, लेकिन एज अ इमेज वो इक्वेशन इंसर्ट हो जाती है। और इसके अलावा एक ऑप्शन, आई थिंक ये टाइम ले रहा है, इसमें आप ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आई थिंक खुला हुआ है, दिखा देती हूँ। इसमें ये ऑप्शन है इक्वेशन का, कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। इसको एक मिनट फिर से हटाती हूँ। जैसे आपने ग्राफ पेपर खोले, एक्स स्क्वायर लिखना है, मैंने ये लिख दिया है। अब मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर स्लाइडर एट, एक मिनट कुछ एरर आ रही है इसमें। आप यहाँ पे इक्वेशन लिख के बेसिकली उसका ग्राफ बना के उसको मूव कर सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। आई थिंक मैं बहुत फास्ट टूल से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लग रहा है। मैं वही बताती हूँ आपको फॉर्म में ही अपना, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, उसमें आप इक्वेशन भी सीखना चाहेंगे। कंट्रोल शिफ्ट टी, हाँ मेरा हैंग हो रहा है सिस्टम। ये यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए आपने जो इक्वेशन मैंने लिखी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। एक बार के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि जो लोगों को ऐसे इक्वेशन लिखना प्रेडिक्शन वाला नहीं ठीक लगता, लेटेक्स टाइपिंग का भी ऑप्शन है। अगर आपको आती है लेटेक्स टाइपिंग, ये एक ऑप्शन है जहाँ पे अपने वो यहाँ से लिखेंगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग वो पहचान पा रहा है, इमोजी से बताता है कि आप अच्छा लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, ठीक इम्प्रूव की जरूरत है राइटिंग। ये देखो ग्रीन हैप्पी इमोजी आ रहा है, तो वो बताएगा आपने एक्स स्क्वायर लिखा है, तो वो उसको कर देगा। वहां पे आप लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और आपके वहां पे मैच दिख जाएगी। उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। अगर आपने ठीक नहीं लिखा है तो आप उसको करेक्ट करो, डिलीट करो, ये सारी चीजें वो कर लेता है। उसके अलावा आपके पास नरेशन करके बोल के इसको बोल सकते हो। कैन यू, यहाँ से ऑन कीजिए, कैन यू राइट फॉर मी एक्स स्क्वायर, तो इट विल राइट। मैं इसको अभी के लिए स्टॉप करती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों को देखने में। ये आपका वो ग्राफ पैड है जो मैं बता रही थी, इसमें आप ग्राफ बना के इंटरेक्टिव इस चीज को कर सकते हो। केमिस्ट्री का भी एक बार एक सेकेंड के लिए हम देख लेते हैं। जैसे आपको एल्यूमिनियम लिखना, तो एल्युमिनियम आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें आ रही है एल्युमिनियम से रिलेटेड। अब आपको जो भी लिखना है ना ऑटोमेटिक वो लिख देगा, आपको इतनी टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, वो सजेशन दे देता है प्रेडिक्शन के अंदर। तो इट्स अ रियली वंडरफुल टूल जो आप सभी की लाइफ इजी कर देगा, पढ़ाने के लिए भी और क्विज लेने के लिए भी। और आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, बट दैट्स इनफ। अभी के लिए आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बताइए। देख एक आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो मैं दिखाना चाह रही थी, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया। ये स्लाइडर है, अगर मैं एक ही वैल्यू चेंज कर रही हूँ ग्राफ चेंज हो रहा है। आई थिंक आप सब देख पा रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप मैथ्स इजीली पढ़ाएं अपने स्टूडेंट्स को, समझना उनके लिए बहुत इजी है। आप यहाँ पे बिल्कुल क्लीन आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको बंद कीजिए, दूसरी इक्वेशन लिखिए आपको जो भी लिखनी है, और उसका ग्राफ बनाइए और आप उसको समझाइए। बहुत सारे फीचर्स हैं बेसिकली इसके, यहाँ से आप ब्राउज सकते हैं, ये टूल होते हैं इसके। और आई थिंक दैट्स इनफ। एनीथिंग यू फील कि मैंने छोड़ दिया है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। So I'll call to answer your queries later also. Thank you so much, Nisha ma'am. Of course, there are a lot yet to learn, but we have some time constraint also. So we move on the next lecture. But before that, it's a great pleasure for us that you be with us, and you discussed a lot on discussions and material sharing and note taking tools and so many other tools. We request you that if you send me or in a WhatsApp group these two name of tools, so we can complete it with the participants also. I hope Yes, this of will course possible. I will share. Yeah. Thank you so much, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Okay, thank you. Yeah, I will share all these things. नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं हम और हमारे नए लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, नए सेशन की तरफ जा रहे हैं. और ये सेशन कल के सेशन से जुड़ा हुआ है. कल हमने जो वीडियोस बनाए उनको फिर अपलोड किए, लेकिन अपलोडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई. तो ये पोस्ट रिकॉर्डिंग एसेंशियलिटीज जो है, ये क्लास सेना असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, हमने साथ ही कॉपीराइट हमारे सामने आता है कि YouTube पे हम अपना कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट जो है अगर उस पे कॉपीराइट इशू है तो हमें वहाँ पे डालने से रोकना पड़ता है. तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को काफी. तो सर, यू आर वेलकम.
Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. So I see 172 participants. Can I see the present P? Can you type P in the text box? All those who are present, can you type P in the text box, chat box? I want to see how many are attending. Oh, excellent. Good. So people are attentive. Okay. So आज तक के जो सेशन हुए हैं, good. P's are coming. Some people are waking up. A lot of P's there. Lot of P's. So good. So the FDP is going good. कल और आज में बहुत सारी चीजें सीखी गई कि वीडियोस कैसे बनाने हैं, लैपटॉप पे कैसे बनाना है, मोबाइल पे कैसे बनाना है, और फिर उसको पूरा आपने वीडियो बना लिया, प्रोसेस कर लिया. नाउ उस वीडियो में आपने कुछ इमेजेस यूज की या कुछ टेक्स्ट यूज किया, उसके अंदर कुछ कॉपीराइटेड मटेरियल है. नाउ सिंस वी आर अपलोडिंग इट on our YouTube channel, we have to take care about the copyright issues. जो इमेज यूज की, जो टेक्स्ट यूज किया, उसको कॉपीराइट मटेरियल को कैसे एट्रीब्यूशन देना है, कौन सा मटेरियल अपन यूज कर सकते हैं फ्रीली, कौन से मटेरियल के लिए अपन को लाइसेंस चाहिए होता है. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपने सारा चीज बना लिया, अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है. तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो मेनली है प्रेजेंटेशन. हाउ टू